ایسی میرے سے کیوں ہے آپ کو؟ دوسری بات یہ ہے کالے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو چڑیل لگ رہی تو میں آپ کو اپنی بہن کہہ کے مخاطب کر رہی ہوں. پیاری بہن میری آئی برو ایسی ہی ہے, میں آئی برو بناؤں نہ بناؤں اللہ کا شکر الحمدللہ بنی رہی ہے. اور میں باریک نہیں کرتی. لوگ شادیوں میں آنے سے انکار کر رہے ہیں, چچی نے بس بھر بھر کے شادیوں میں لوگ لے گئے تاکہ لوگوں کو عزت رہ جائے کہ ان سے کوئی ملتا جلتا ہے. چچی کی قربانیوں پہ اگر آپ جائیں گے, چچی کی قربانیاں اتنی ہیں کہ یقین مانے عید پہ اتنے قربان نہیں ہوتے ہوں گے جتنی چچی کی قربانیاں ہیں. اور پھر لوگ چاچی پوچھتے ہیں یہ تو برا کہہ سکتے ہیں میرے ساتھ جب کسی نام نہیں لینا, بس عادت بتا دو. آپ نام نہ لیں, عادت بتا دیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلے ہو جاتے ہیں ایسے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, وہ مجھے پسند نہیں. بات وہ آرام سے کریں, ضرورت نہیں ہے, ایزی ہو کے ٹھیک ہے. دوسرے کچھ ایسے لوگ دیکھتے ہیں تمہیں تو سمجھ لگی ہے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسی طبیعت ہے سب کی؟ کیسے ہیں؟ آج آپ کو بڑا کچھ ملے گا, بیٹھے رہیں. ظاہر ہے آج تو بڑا مواد ہے ہمارے پاس. جناب علی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے, پرفیکٹ ہوں گے, آل رائٹ ہوں گے. تو جناب علی آج کے آپ کے ویلوگ پہ آپ کا ویلکم کرتے ہیں. آپ کے خوبصورت اپنے پیارے گونگوں کے ساتھ, گونگوں بہروں کے ساتھ, عجیب و غریب خلقت کے ساتھ, اپنی ہی دنیا میں رہنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں ویلکم. عاشق کے ساتھ, دیکھیں اپنی دنیا دو سسٹرز کے ساتھ, ایک شیف کے ساتھ, ایک سیلیبریٹی کے ساتھ, دیکھیں جی اپنی دنیا میں رہنا چاہیے, جو مرضی کوئی کرتا اور ہے. میں ایک عام آدمی, عام جنتا کا ایک عام سا بندہ, ایک سادھارن سا انسان. ٹھیک ہے جی. جناب میری آج ہم انٹرسٹنگ سا ایک ولاگ ہے جو ہمارا چلتا ہوتا ہے اکثر 2-3 مہینے بعد ہم بنا لیتے ہوتے ہیں. اس دفعہ 3 مہینے بعد بنانے کی زیادہ ہی ہوگا, 3 مہینے ہو گئے میرے پاس, 3-3.5 زیادہ ہو گئے. 3.5. جناب میری آج ہم Q&A بنانے والے ہیں اور اس میں جو آپ نے سوال ہم سے پوچھے ہیں وہ رکھیں گے. آپ کھڑے جواب دیں. ہاں جی اچھا کریں, اس کا ہم رکھیں گے سارا جو آپ لوگوں نے پوچھا ہوا, کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو اس کے صحیح میسج کا جواب دے سکے اور آپ لوگ انجوائے کر سکے بلاگ کو. تو جناب میری اس سے پہلے کہ ہم لوگ Q&A شروع کریں, میں اپنے 3 دگج لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ ہمارا تو کوئی سوال نہیں, ہم نے جواب عوام سے نہیں اپنے آپ سے. اپنے آپ سے جی اپنے آپ سے کسی کو کوئی سوال نہیں ہوتا. اچھا آپ کو اپنے آپ سے کوئی سوال نہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم شکر ہے. سوال وہ ہوتا ہے جو کوئی اپنے آپ سے کوئی آپ کو کوئی اپنے آپ سے سوال؟ میرا اپنے آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے کافی اپنے آپ کو پروف کیا, اپنی غلطیاں سدھاری ہیں اور آگے بھی اپنے آپ کو ایسی اچھا کرتے رہیں گے کیونکہ انسان سیکھتا رہتا ہے. کیونکہ انسان جو آگے بڑھتا ہے تجربے کار ہوتا رہتا ہے. انسان پچھلی ماضی کی غلطیوں کا تیار میں وہ بھی غلط کیتا ہے, وہ بھی غلط کیتا ہے, خود نئی چیز نہیں کرنی. لیکن پھر یہ سوال تو نہ ہوا. لیکن اپنے بارے میں دیکھیں جی, کیا آپ نے اتنے سال غلط کیا؟ یہ سوال بہت زیادہ غلط کیا اتنے سال. میں اچھا ماجد نے مجھ سے پوچھے تھے آپ کو 10 سال پیچھے لے کے جائیں تو آپ کیا کریں؟ میں کہوں وہ انسانوں میں ٹھٹا ماروں, میں سے وہیں کو اللہ پہ آگے میں چلے جاؤں. چلیں جناب کوئی بات نہیں, زندگی سیکھنے کا عمل ہے اور بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ یہاں پر میں غلط تھا, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس سے اچھا ابھر کے آؤں. کیونکہ یہ 2 لوگ جو ہیں دگج لوگ ہیں, فرشتے لوگ ہیں, یہ غلطیاں نہیں کرتے. کوئی سوال پوچھے تو اس کا جواب دیتے ہوئے انسان اچھا لگتا ہے. اب اپنے منہ سے میاں میٹھو بن جائیں, یہ تو پوچھے کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں. کوئی بچے ہیں ان کو کیا بتاؤ, چلیں یہ تو میں مانتی ہوں. تو سبق سیکھنا چاہیے جب اتنی زندگی گزاری. یا تو ہم سے یہ سوال کیا جائے نا کہ آپ نے پیچھے سے کیا سیکھا یا کیا مسئلے تھے, یہ جو آپ نے پیچھے سے کیا سیکھا, تو آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے سے اپنا سوال 7500 دفعہ ہم بتا چکے ہم نے پیچھے سے کیا سیکھا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, میرے کہنے کا مقصد تھا کہ مطلب آپ اپنے طور پہ اصلاح کے لیے کیا مطلب یہ کہنے کا مطلب کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. آپ دونوں لوگ پرفیکٹ لوگ ہیں, ہم دونوں غلط, ہم لوگ ہیں, ہم دو ناچیز لوگ ہیں جو ہیں تو اسی قسم کے لوگ یہ ہم نہیں ایسی باتیں سوال کرتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بہرحال جناب علی ہم لوگ چلتے ہیں سوال کی طرف اور پہلا سوال ہم لیتے ہیں جی. جناب علی پہلا سوال ہے جی صنم بلوچ کا.
सनम बलोच कह रही हैं कि मेरा सवाल है माजिद भाई की शादी कब है? यार तंग आ गया हूँ मैं इस तरह। ये तो फिर आप ही जवाब दें। एक आपको सवाल ये आने, एक सलमान खान को आते हैं। अच्छा जी, माजिद भाई की शादी कब है? और अच्छा जी, माजिद भाई की शादी कब है? किधर गया? हाँ, कब है और किससे है? क्या माजिद भाई ने ढूंढ ली है जो लाइव पे कहा लंबे बाल एंड मोटी आईज? ओए इनको ऐसे पता है। देखें जी, कहा था मेरी बात सुने, लंबे बाल और मोटी आईज बंदा कह सकता है, बंदा कभी मूड में होता है तो बंदा कह देता है। हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है, हर बंदा अपने हिसाब किताब से होता है, सिस्टम निज़ाम से होता है। तो आई लाइक बीइंग लॉन्ग हेयर, लड़कियों के लंबे बाल मुझे पसंद है और अच्छे होने चाहिए, जुओं के बगैर हो तो अच्छे, ज़्यादा अच्छे हैं। तो क्योंकि उसने अपने घर में लंबे लंबे बाल देखे। नहीं, आप इस बात पे क्योंकि इस बात पे इसलिए हंसी है क्योंकि लड़की हो। लंबे बाल भी और जो है ना, ये कैसे हो सकता? ये कैसे? नहीं, आप इस बात पे जानबूझ के हंसी हैं। मैं इसलिए आप इस बात पे जानबूझ के नहीं, I am sorry, मैं ये कह रही हूँ कि लंबे बाल भी और जो है ना, ये नहीं होते। आप ये बात आ जाए, आप शैतानियां करते हैं, आप शैतानियां करते अल्लाह माफ हैं। करे, आप शैतानी फैला रहे हैं। जिस तरफ आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, मैं उसका तज़किरा करना ही चाह रहा, लेकिन आप ये जानबूझ के हंसी हैं। चले छोड़े इस बात चले अपने सवाल का जवाब नहीं दें। है जो पड़ी जाती है ना। अच्छा जनाब अली, शादी कब करनी है? शादी भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। अभी कल ही हम कहीं रिश्ता देखने गए हुए थे, हाँ जी। लेके गई थी हमें, हम रिश्ता देखने गए तो वो छोटी ज्यादा, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि थोड़ा मैं मैच्योर बंदा हूँ, तो यू नो मैच्योर है एज डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, जी, तो वो थोड़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए। थी घर में जितनी। मैंने एज की बात की, मैंने कद की बात नहीं की। क्यों आप लोगों को मेरे पीछे लगाना है? क्या हो गया आपको? इतनी कहती है, महंगा इतनी। जी मैं एज की बात, एज आज आपने क्या कहा? मैंने अभी खाना खाना ही ना इसलिए तो आपसे उल्टी फुल्टी बात हो जा रही है। कैसे खाना बनता तो क्या अच्छा जी जनाब अली, और जो मैंने लाइव पे कहा लॉन्ग हेयर्स और ये और वो और दिस और डैट और ये वो, जनाब अली आप समझने की कोशिश करें कि हर इंसान की अपनी एक वो होती है, चाह होती है, अपनी एक सोच होती है, अपने ख्यालात होते हैं, तो उस हिसाब से मैंने कही थी। तो जनाब अली चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारे पास है, तैयबा ने पूछा है। तैयबा कहती हैं हसन भाई के कितने सिबलिंग्स हैं? हम माशाल्लाह 2 बहनें 2 भाई हैं, मुझसे 2 बड़ी बहनें हैं, फिर मैं हूँ, फिर मुझसे छोटा बिलाल है। डिटेल बताएं। डिटेल यही है माशाल्लाह। दोनों आप कब पैदा हुए? मैं किस मौके पे पैदा हुए? मैं- क्या सन था वो? क्या वक्त था? मैं 1990 और नहीं हो पाई। ठीक है, बहुत ही तमाम वाले दिन पैदा हुआ, ठीक है, और शाम का टाइम था। और जब मैं हुआ, मेरे दादा अबू ने मोती चूर के लड्डू बांट के पहला पोतला चश्मा चुरा सारे लड्डू तो आए ही हुए थे। अरे भाई एक लड्डू आते रह गए ना, कितने कोई रख गया। लड्डू जाए क्यों है? लड्डू तो मेरे घर थोड़ गए थे, हाँ माशाल्लाह, इतने अच्छे लड्डू बने थे। चलें जी, हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है जी सफूरा खान का। सफूरा खान कहती है दिस गाइस नोज इज सो बिग यू कुड पार्क 2 कार इन देयर। अच्छा, वो कह रही है कि एक जो बंदा है, हाँ जी, इसका नाक बहुत बड़ा है, अच्छा, इसके अंदर 2 गाड़ियां आप पार्किंग में लगा सकते हैं। सफूरा खान, पहली बात तो ये कि आपका पता नहीं आईडी ओरिजिनल है, आपकी अपनी है, हाँ, क्या है, आप कौन है, या आप हाँ, इस जगह पे रहती होंगी मेरे ख्याल से, जहाँ पर वो बड़े बड़े पहाड़ होते होंगे, उनको छेद कर उनमें घर बनाते होंगे। बिल्कुल जी, यहाँ आपकी हाइट होएगी कोई 100 फुट की, और आपके मलहूका क्या होता है? इर्द गिर्द वो एक और लफ्ज होता है ना, मलहूक का क्या होता है? मलहूक। नहीं क्या होता है? मलहूका इलाके नहीं होते, मलहका जो भी इलाके होते हैं उसमें वहाँ पे ऐसे होते होंगे। और आपको अगर हसन की नाक इतनी पसंद है और आपका दिल चाह रहा है कि वहाँ पे आप पार्किंग करें और अपनी गाड़ी का, तो आप आ जाए, हसन साहब से मिले, उनके नाक का प्लॉट का कब्जा ले। मैं ऐसे करूँगा तो आग के अंदर फिर भी जाए। हाँ, इस तरफ को स्विमिंग पूल बना ले, इस तरफ को अपना घर बना ले और रहे उसमें। तो फिर इसका मतलब है कि फिर आप जिज्जू है ना। लेकिन कीमत अदा करनी पड़ेगी। नहीं, हमने दिया आपको free। और जो अंदर होंगे छोटे छोटे वो आप खाना भी खा भी नहीं। मैंने जो मेरे घर वाले हैं ना, वो जिज्जुओं का क्या हाल करते हैं।
लेट मी एक्सप्लेन। एक मैं नाम नहीं लेता किसी का, ठीक है, वो ऐसे ख्वाब ख्याल में यूं करके यूं करते हैं, यूं करके यूं करते हैं, निकालते हैं और फिर कहते हैं तू मेरे नक चक्की कर, तू मेरे नक चक्की कर, उनकी पसलियां तोड़ के मड़ोड़ के उसको यूं करके देखते नहीं उसकी तरफ, यूं सोच कुछ हो रहे थे, इसका खाना खराब कर दूंगा दोबारा मेरे नाक में, फिर यूं फेंकते हैं नीचे, फिर उसको गौर से देख रहे थे, हुन जो मेरे नक च आया ना, फिर दो लोग हैं ऐसा करते हैं बारह। हम नाम ही लेना पसंद करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जरूरत नहीं। अच्छा जी जनाब अली, उसके बाद है जी फोस्टर कॉफी। फोस्टर कॉफी भी जड़ी ना, फोस्टर कॉफी हटा के फोस्टर कॉफी लिख लो अपने, ये एक आईडी है जी, है उन्होंने दी, लेकिन उनकी करिए। अच्छा जवाब शाकश अपनी आईब्रो शदीद शार्प क्यों बनाती है? अच्छा, पतली आईब्रोज में शाकश हेलोविन की विच लगती है। एक तो शाकश हर वक्त ब्लैक कलर में होती है, ऊपर से शार्प आईब्रो, उफ्ट पांडू। हाँ जी, शाकश के पास चलते पटे। मुझे समझ नहीं आ रही इतनी जैसी मेरे से क्यों है आपको। दूसरी बात ये है काले कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है। तीसरी बात ये है कि अगर मैं आपको चुड़ैल लग रही तो मैं आपको अपनी बहन कह के मुखातिब कर रही हूँ, प्यारी बहन मेरी आईब्रो ऐसी ही है, मैं आईब्रो बनाऊँ ना बनाऊँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बनी रही है। और मैं बारीक नहीं करती, कैमरे में अक्सर या वीडियो में ऐसे लगता है कि ऐसा बहुत बारीक है, सामने आके देखे मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा जी, फोस्टर कॉफी एक दफ़ा मेरे ख्याल से एक दो दफ़ा कमेंट में मेरी आपसे बात हुई है और आप बड़ा कहती हैं जी मैं सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड पढ़ी लिखी हूँ, पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो क्या आपके ख़ानदान में लोगों को हेलोवीन की चुड़ैल कहा जाता है? हैं जी, क्या आपकी खालाएँ चुड़ैल हैं? क्या आपकी पुफियाँ चुड़ैलें हैं? या आप अपने आप को शीशे में देखकर चुड़ैल याद करती रहती हैं? और दूसरी बात ये, अगर शाकश के आईब्रोज शदीद किस्म के शार्प या बरीक वो बनाती तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਗਾ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਿਕ 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 करके कर रहे हैं। बात बंदा चज की बात करे, जो कोई बात हो करने वाली, ये तो वो है साड़ गिरा। तो ऐसा इंसान जैसा होता है ना वो अगले को वैसे ही हाँ। और जो आपने पांडू मतलब पेंडू लिखने की कोशिश की है, पांडू लिखा है, तो उसमें आप ही पेंडू लग रही हैं, उसमें उनका कुछ नहीं जा रहा, ना उनका कुछ बिगड़ रहा है। उन्होंने आईब्रोज ऐसे ही और पतले बनाते रहना है, और पतले बनाते रहना है। आप सड़े पेंडू इंसान नहीं होते नहीं, मतलब पेंडू जो इंसान किसी को मतलब थर्ड क्लास समझ उसको पेंडू करना शुरू करता है, तो इसका मतलब आप खुद थर्ड क्लास हो ना। और आप किसी को ऐसा समझ रहे हो तो आप खुद थर्ड क्लास हो, आपकी सोच थर्ड क्लास है, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते इस दुनिया में, और आप मैसेज करके कि अपने आप को बड़ा सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट साबित करने की कोशिश करते हो, जो कि आप खुद चंगड़ों की महारानी है। बिल्कुल। होप आपको अफाका हुआ होगा, समझ आ गया। अगर आपको अफाका नहीं हुआ होगा तो चुड़ैलों और भूतों के खानदान से ही लग रही है। जो अजीब किस्म के रोज इंग्लिश मूवी देखी है डरावनी वाली। नहीं चुड़ैल भूत खुद ही हैं ये। हाँ जी, वो वाला खानदान है, हम सा बेटे वाला। मुझे लगा हाँ जी वही। 12 जनाब अली, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इफरा नजीर ने। इफरा नजीर कहती हैं, मेरा क्वेश्चन है, आपकी सिस्टर जब लड़की देखने जाती हैं तो उन्हें आपकी डिमांड का नहीं पता होता, वो हाँ क्यों करके आती हैं और आप बाद में कुछ अरसा रख के खत्म कर देते हो। ऐसे लड़की और उससे ज्यादा लड़की के घर वाले हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं। साल लो थोड़ा जा बोल सबके घर बेटियां हैं, प्लीज इस चीज पे थोड़ा देखें, और अगर अपनी बहन भाइयों के बगैर नहीं रह सकते तो लड़की वालों को पहले बता दिया करें। वाइफ के अपने राइट्स होते हैं, बहन भाइयों के अपने, माँ बाप के अपने, इक्वालिटी पर हर रिश्ता लेकर चलना चाहिए। इफरा नजीर का सवाल है, पहले आप बता दें। पहली बात तो ये है इफरा नजीर, क्या कहूँ मैं आपको कि आपको ज़्यादा पता कि हमने बताया था या नहीं बताया था या हम बीच में बैठी हुई थी, बात हुई थी या नहीं हुई, क्या पता हुई हो। तो आगे बस हर बंदा चेंज होता है। मैं तो यही कहूँगी आप जितनी मर्जी डिटेल बता लें, जो कुछ मर्जी कह लें, इंसान ने चलना अपनी मर्जी से, जिन्होंने नहीं करनी बात ये जी। तो हम कब किनको रिजेक्ट हमने किया, हमें पता अपने भाई की डिमांड का। हमने किसी को तो रिजेक्ट नहीं, ना किसी का दिल दुखाया, ना किसी को हमने कहा उनके माँ बाप को का दिल दुखाया, हमने ऐसी कोई बात नहीं की हमने।
इफरा नजीर साहिबा, लेट मी आंसर, ठीक है। पहली बात ये कि मेरी बहनें बगैर उस चीज़ के मतलब किसी से कोई बात नहीं, उन्होंने पहले ही जाके वो सारी बात डाल कर ली थी कि भाई हमारा भाई ये ऐसे ऐसे ऐसा ये, उनको अच्छी तरह से पता है, वो मेरे साथ रहती हैं। और दूसरी बात ये कि ना कभी किसी के साथ हम धोखा करते हैं, ना हमारी आदतें हैं धोखा करने की, जिसके सामने मिसाल आपके वहाँ हसन आपके सामने है। हम अपनी कमिटमेंट पूरा करते हैं, चाहे बाद में पता चले कि खोता ही खरीद लिया सी, फिर भी ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐ ਸਮਝੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੈਵਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ अल्लाह लो बारिश पे आ गई थे और लैना लोना मिट गया थे, खोता निकला है। नहीं, अगर ये सवाल असर के हवाले से था तो उसको भी हर चीज पता है, और उससे कोई बात और अगर नहीं अगर आप लोग ये समझते हैं कि बहू बीवी के भी हकूक होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माएँ भी यहाँ पे बहू ही आई थी, उनको हकूक पूरे मिले थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फैमिली सब कुछ मिल गया, सबके हकूक होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने वो किताबें पढ़ रखी हैं जिसमें सिर्फ बीवी के हकूक हैं, तो बीवी ने बंदे ने गले च फंदा पा के उनको तो इतना रुझ जाना है, तो ऐसा कितने नहीं पढ़ा, ना मैं किसी सुने हैं, ना कोई ऐसी बात है, और ना ही मेरे ख्याल से कोई ऐसे जिक्र के बारे में बात करें तो अपने भी फराइज जाने ना। जी। ये बात ये हकूक की बात वो करे जो दूसरों के फराइज भी पूरे करे, ये नहीं कि अपना पता नहीं दूसरों को हकूक लगे। दरअसल ऐसे लोग वो होते हैं जो अपने माँ बाप और किसी के माँ बाप को माँ बाप नहीं समझना। इस टॉपिक पर ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं पहले भी बहुत दफा बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा बात कर रहा हूँ। देखिए, दोनों तरफ से हस्बैंड और वाइफ दोनों तरफ से इक्वल हकूक होते हैं। मैं जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी सोच ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, शादी हो गई है, शादी के बाद कमिटमेंट है, तो मेरी तरफ से कमिटमेंट ये होगी कि भाई मैं आपके घर वालों को देखता हूँ, आप मेरे घर वालों को देखो, ठीक है। तो इसमें यही होगा ना कि आप अगर यहाँ तशरीफ लाए हैं तो आप मेरी बहनों को बहनें समझे, मैं आपकी बहनों को बहन समझता हूँ, आपके भाइयों को भाई समझता हूँ, मेरे भाइयों को भाई समझ, मेरी माँ को माँ समझे, मैं आपकी माँ को माँ समझता हूँ। इससे वो जो आप कह रहे हैं ना कि इक्वालिटी, जहाँ तक मेरा ख्याल है इक्वालिटी बैलेंस हो जाती है, लेकिन वैसा ही समझा जाए दिल से। अब लड़की की माँ को भी तो माँ क्या ही देगी ना, कुछ जा रोटी बना दो और दूर ये वो फलाना कह देती होगी, ठीक है। वो बात यहाँ पर आकर अगर कोई बहन ने कह देगी कि आप आज आपने रोटी जली हुई बनाई, तो इसमें क्या आपको जुर्म कर दिया? अगर समझा जाए तो बात तो समझने वाली बात है ना कि माएँ भी तो कह देती है ना बेटियों को, अगर देखा सास कह देगी तो उसमें बुराई वाली क्या बात है? इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या चीज गलत हो गई है? हाँ, लहजा अगर गलत है तो उसको लहजे को ठीक किया जा सकता है। लहजा अपनी बेटियों की तरह रखना चाहिए, बहुओं को भी चाहिए और सासों को भी चाहिए कि जैसे आप अपनी बेटी को ट्रीट करती हैं वैसे ही दूसरी को बेटियों को भी ट्रीट करें, तो ये मामला ऐसे आराम सुकून से हल हो जाएगा। कहीं पे भी जॉइंट सिस्टम के कोई मसाइल नहीं होते, हर जगह पर मसले मसाइल होते हैं, हल आपने खुद करने होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जनाब अली, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है उस्मान खान ने। उस्मान खान ने पूछा है हसन और मरियम का क्या हुआ? यार मुझे समझ ही ना दी, करोड़ 100 दफा एक गल नु दस चुके हैं और सुता है ऐसी छह भी जबान दी आंख खुली है। एक बात सुन, क्या पता तुम्हें ना पता हो ना बताने में, क्या आप बता दो थोड़ा सा, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, हसन और मरियम का क्या हुआ? हसन साहब ने डिवोर्स दे दी है और बाकी हसन साहब आपको बताते हैं। मेरी डिवोर्स हो चुकी भी है और डिवोर्स हुए हुए भी साल होने वाला है, ठीक है। सितंबर की डिवोर्स हो गई है मेरी, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं, अब तो मैं नेक्स्ट होने लगी माशाल्लाह शादी यार, उसको एंजॉय करो, पिछली कहानी भूल जाओ, वो खत्म हो गया। और जिस इंसान ने नहीं रहना होता उस इंसान ने नहीं रहना होता, वो खत्म हो गया, वो चैप्टर भूल जाओ। ज्यादा तफसील चाहिए ना तो पूरे व्लॉग्स देखें। हाँ, इधर दूसरी का इंतजार करें, उधर तीसरी का इंतजार करें, ठीक है। दुनिया वसंत दो, दुनिया खुश रहने दो, जो जहाँ है जैसा है। ज्यादा तफसील चाहिए तो पूरे व्लॉग देख लें, आपको सारी तफसील पता चल जाएगी, डिटेल में पता चलेगी एक व्लॉग। तैयबा का एक और सवाल है जी, वो पूछे शाका सिस्टर की क्वालिफिकेशन क्या है? शाका सिस्टर वैसे तो बहुत पढ़ी लिखी, सारी बुकें खत्म हो गई, सारी बुकें खत्म हो गई, लेकिन आप घर चले जाए, इससे आगे किताब है नहीं, हमने छापी नहीं अभी, है ना। इतना बड़ा क्या बताऊं, एमफिल करके बस फारिग हो गई, पढ़ाई नहीं खत्म हुई, पीएचडी भी होती है, इतना मैंने हां पीएचडी पर जाना था ना, तो बस क्या करूं, ऐसे तो मैंने बड़ी चीजों में पीएचडी की हुई है। किस में? पीएचडी इसने पहले कर ली थी ना, बड़े हम काम में पीएचडी की हुई थी, लेकिन क्वालिफिकेशन की बात है तो मैंने एफए किया हुआ, लेकिन लगती मैं ज्यादा एजुकेटेड हूं। हां बिल्कुल, तो ये बात लेक्चरर लगती है, लेक्चरर बिल्कुल। हां, अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप लेक्चरर नहीं, मजाक, आप हकीकत बयान दे रहे हैं, सही कह रहे बाजी, सही कह रहे आपने भी हंसना नहीं है, मजाक नहीं कर रही, हां हकीकत भी मैं सीरियस हूं। लेक्चरर मेरी बात सुनो, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी लगती है जैसे मैं टीचर हूं, लेकिन जबकि मैं टीचर नहीं हूं। लेक्चरर लगना नहीं लगना ही, लोग प्रोफेसर हैं, परफेक्ट। हां जी, लोग समझ रहे हैं प्रोफेसर, किधर गए? बहुत सारी चीजों की प्रोफेसर
मैथ की मैथ की तो मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है जी, हम आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। जी अच्छा जी जनाब अली, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है नुज़त पारे ने। जी इतना प्यारा नुज़त पारे, पारा, अक्सर आता है पारा मेरा एक दोस्त भी है। पारा वो अल्लाह जन से कि आप भी कहना चाहिए आशा पारे, आशा पारा, ठीक है। पारे। और जनाब ये नुज़त पारे का पहला सवाल है जी, उनके 1 2 3 4 सवाल है उनके। अच्छा जी। ठीक है जी, ट्राई करते हैं नुज़त पारे आपके पारे सवालों के पारे जवाब देने का। पहला सवाल है जी, मरियम को क्यों छोड़ा है? इतने धूमधाम से शादी करने के बाद 4-5 महीने भी नहीं रह सके साथ। अच्छा जी हसन साहब, दरअसल जो इंसान खुद में रहना ना चाहे तो उसको कैसे रख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और कहे मैं अभी घर जा रही हूँ अपनी मदर के आती हूँ और वहां जाके पसर जाओ, तो फिर आप वहां जाके क्या करोगे? जो कोई रहना धूमधाम ना से चाहे, जी 15 दिन बाद चला जाए, हाँ। वापिस ना आना चाहे तो सारा कुछ खत्म करके चला जाए। तो दूसरी बात ये थी, कंटेंट की शादी थी, 15 दिन का सारा टाइम था, टाइम निकल गया, 100K हो गया, सलाम अलैकुम हो गया। ये बात इन दोनों को समझ नहीं थी और अनु की तो जान समझ आनी है जी। तो बहरहाल जनाब अली ये मामला खत्म हो चुका है, और अगर ज्यादा तफसील चाहिए तो उस तरफ को जाएं, वहां से अगर आपको कुछ सवाल का जवाब मिलता है तब वो ले लें। सेकंड क्वेश्चन है, आप दोनों शादी कब करोगे? चाचा भतीजा, एज जा रही है। लो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ? ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ, ਉनकी जा रही ना। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਉੱਥੋਂ। अच्छा जी पहली बात तो ये हसन साहब की शादी इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी अल्लाह पाक ने चाहा तो नवंबर में इंशाल्लाह ताला बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े प्यारे सोफिस्टिकेटेड डिसेंट तरीके से हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर का वक्त है। दूसरा, अगर मेरी एज गुजर रही है तो इट्स ओके, इतनी गुजर गई, बाकी भी अगर उनका जवाब नहीं देगा, परेशान ना हो। उनका फिक्र नहीं तो आपको क्यों फिक्र हो? आप क्यों हमें मरी, फिक्र नहीं है। आप क्यों मरी जा रही है? आप क्यों सुबह का नाश्ता छोड़ रही है कि चाचू की एज गुजर रही है? आपने चाचू नहीं कहा, चाचा लिखा हुआ चाचा। कोई बात नहीं, गुजर ठीक है, तो कोई मसला नहीं हम है। लोग जब नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? बिल्कुल। अच्छा ये थर्ड क्वेश्चन ये है, और ये जो आपकी सिस्टर हैं इनकी शादी हुई कि नहीं? अल्लाह ये जो मेरे साथ बैठी ना, इनकी शादी हुई तो इनकी बेटी आई, हाँ। तो ये चच्ची बनी, हाँ। और पूरी दुनिया में जलील हुई। चिट्ठी बन के खाई मैंने, तो किस लिए खाई? आपको समझ क्यों आई? मुझे क्यों चढ़ा? आपको पता नहीं है, इतनी खे खाई, इतनी जिल्लत में चच्ची बन के की। चच्ची मशहूर हो गई। चच्ची थी तो शादी हुई ना, कैसे चच्ची बन गई? इसकी है, चलो नहीं, उसने की, उसकी मर्जी। मेरी मर्जी। चच्ची ने दुनिया में आके क्या किया? चच्ची ने दुनिया में आके पहला काम ये किया कि किसी को वो सिखाई कुकिंग। चच्ची ने पहला काम ये किया। चच्ची ने दूसरा काम आके ये किया कि वो चच्ची बनी। तीसरा काम ये किया कि फिर वो चच्ची बनी। फिर तो चटनी बन गई। फिर चच्ची ने ये काम किया कि चच्ची ने शादियों में लोग प्रोवाइड किए। रखिया दिलाई, चच्ची ने दिलाई, किसने दिलाई? चच्ची हाँ ने जी, दिलाई। लोग शादियों में आने से इनकार कर रहे हैं, चच्ची ने बस भर के शादियों में लोग ले गए ताकि लोगों को इज्जत रह जाए, इनसे कोई मिलता जुलता है। चच्ची की कुर्बानियों पे अगर आप जाएंगे, चच्ची की कुर्बानियां इतनी है कि यकीन माने ईद पे इतने कुर्बान नहीं होते होंगे जितनी चच्ची की कुर्बानियां हैं। और फिर लोग चाची पूछते हैं इनको शादी पे क्यों लाए, तो चाची ने कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ आ गए हैं, शादी हुई तो ये सब कुछ हुआ। अब इनको भी चुप करके रोटी खाने दो। इन्हें पता ही नहीं आपने मुझे आगे लगा दो। शादी नहीं हुई, शादी हुई तो चच्ची बनी। अच्छा जी जनाब अली, चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल उनका यह है कि हसन के पेरेंट्स और सिस्टर ब्रदर कोई नहीं है क्या? ओ भाई आप कौन से प्लेनेट से आए? मुझे लगता है ये आज ही आएंगे। कोई दुनिया में क्यों आया हुआ है? बताओ फिर कहाँ किस- नुज़त पारे, तुम किस सियारे से हो? नुज़त पारे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थिंग इज दैट के अगर आप न्यू हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर आप पुरानी हैं और आप सिर्फ मुझे देखती हैं, शाकश को, बेबा जी को देखती हैं, हसन आता है तो आंखें बंद कर लेती हैं, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। अभी रिसेंटली पिछले व्लॉग में हमारे घर कल से तो आया, हाँ सारा। हसन की मदर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत से। हसन के फादर जो है 2010 में उनकी डेथ हो गई थी। हसन की 2 सिस्टर्स हैं, दोनों मैरिड हैं। हसन का एक छोटा भाई है बिलाल, उसकी शादी हो चुकी है, जिसकी वाइफ हमसा है, और हसन की शादी होने वाली है नवंबर में, जिसकी वाइफ का नाम एन से शुरू होता है। ठीक है जी, नहीं है। अच्छा जी,
प्लीज भाई मस्ट रिप्लाई विद माय नेम नुजरत पारे। नुजरत पारे शक्कर पारे नुजरत पारे नुजरत पारे आए करारे। नुजरत पारे, हमने आपके नाम के साथ आपके सारे सवाल मेंशन किए। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा ना लगा हो तो मैसेज कीजिएगा, हम जरूर आपको अच्छा लगवाने की कोशिश करेंगे। पता चल गया होगा कि हम लोग क्या आप पसंद परसों का क्या। ब्लॉग अगर हसन की फैमिली के बारे में ज्यादा तफसील चाहिए तो आप पिछला व्लॉग देख लें, पता चलेगा। अच्छा जी, उन्हीं के नीचे कोई है मिस्टर सैरज सिर्फ फरीद, पता नहीं कोई ऐसा कुछ है, ठीक है। उन्होंने खारिश हुई एमएस सवाल देते थे, उन्होंने खुरक की दवाई लैन तो बजाय उन्होंने ऐसे मैसेज कर दिया, मरियम को इन्होंने नहीं छोड़ा, वो खुद छोड़कर गई और हसन पर नामर्द होने का इल्जाम भी लगाया। मतलब ये कौन कहेगा कि जी नहीं छोड़ी और इल्जाम भी लगाया। जिस चीज को आप जिंदा रखना चाहते हैं तो वो आप खुद सोचें कि ये उस मंच, मतलब वो लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं, नीचे सब कुछ करते